Very good morning, dear students. Good morning, sir. Today I am going to teach you A for apple. आप लोग A for apple याद है सबको? Yes, sir. हैं? Yes, sir. नहीं, लेकिन हम आपको A for apple नहीं पढ़ाएंगे, A for ambitious पढ़ाएंगे, ठीक है? आप लोग पहले से ही A for apple जानते हैं, तो आज हम लोग A for ambitious पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए हम आप पढ़ेंगे, फिर आप लोग दोहराइएगा, ठीक है? ओके? A for ambitious, A for ambitious. B for brave, B for brave. C for creative, C for creative. D for determined, D for determined. E for energetic, E for energetic. F for friendly, F for friendly. G for generous, G for generous. H for hardworking, H for hardworking. I for innovative, I for innovative. J for jubilant, J for jubilant. K for kind-hearted, K for kind-hearted. L for loyal, L for loyal. M for meritorious, M for meritorious. N for nice, N for nice. O for optimistic, O for optimistic. P for polite, P for polite. Q for qualified, Q for qualified. R for responsible, R for responsible. S for sincere, S for sincere. T for trustworthy, T for trustworthy. U for unique, U for unique. V for vivacious, V for vivacious. W for voice, W for wise. W for wonderful, W for wonderful. X for genial, S for senior. Y for young, Y for young. Y for youthful, Y for youthful. Z for zestful. J for jestful. Z इसको बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में Z सिर्फ बोलते हैं Z, ठीक है? G for zestful, G for jestful. ठीक है? इसको Z बोलते हैं, Z क्या बोलते हैं? Z for zestful. G for jestful. तो आप लोगों को पहले से देखिए बचपन से यू हैव बीन टॉट अबाउट द A for apple to G for zebra. So this is very easy to memorize if I just teach you right from A to Z, okay? And in this way you will learn around 26 new words that are mostly used in your day-to-day life. मतलब कि यहाँ पर जो आपको A से G तक पढ़ाया जा रहा है, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको डिस्क्राइब करना है खुद के बारे में या किसी और के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है? तो आपको उसकी अगर बखान करना है, यहाँ पर सारे जितने भी वर्ड दिए हैं सब पॉजिटिव हैं, ठीक है? तो आपको उसके बारे में कुछ चर्चा करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट मी डिस्क्राइब वन बाय वन once again, although I just made the same video up to M in my last video, but let me have a recap all the same. So let's start now. A for ambitious. A for ambitious. आप लोग बोलेंगे मेरे बाद I am, बोलिए I am an ambitious person. I am an ambitious person. Ambitious मतलब होता है कि इसका मतलब आपकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है? तो आप जैसे कि बोलिए I want to have a car. I want to have my own home. I want to be a prominent personality. Prominent personality बोलिए. Prominent personality का मतलब होता है कि जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं, ठीक है? फेमस हैं आप, ठीक है? प्रख्यात व्यक्तित्व हैं आप, ठीक है? I want to be a successful person in my life. मतलब आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं. फिर से बोलिए once again, I want to be a successful person in my life. Very good. Now B for brave. B for brave. Brave. I am brave. I am brave. I am not coward. I am not covered. मतलब हम कवर्ड नहीं हैं, डरपोक नहीं हैं और हम बहादुर हैं. तो क्या बोलेंगे? I am brave. क्या बोलेंगे? I am brave. या किसी को डिस्क्राइब करना हो तो उसके बारे में, कोई लड़का है उसके बारे में आपको बात करनी है तो बोलेंगे ही इज़ अ ब्रेव बॉय. क्या बोलेंगे? He is a brave boy. व्यक्ति है ही इज़ अ ब्रेव पर्सन. He is a brave person. तो लड़की है तो सी इज़ अ ब्रेव गर्ल. बोलिए सी इज़ अ ब्रेव गर्ल. She is a brave girl. तो इसका मतलब हो गया कि वो ब्रेव है, ठीक है? इसको आप करेजियस भी कह सकते हैं, ठीक है? ठीक है? आई एम करेजियस I am courageous. मतलब मैं साहसी हूँ, हिम्मती हूँ, ठीक है? क्या बोलेंगे? आई एम ए करेजियस पर्सन. I am a courageous person. नाउ सी फॉर क्रिएटिव. C for creative. हु इज क्रिएटिव? क्रिएटिव कौन होता है? जो कुछ ऑलवेज हमेशा अच्छा करता है, ठीक है?
आपने एक वर्ड सुना होगा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब क्या है? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या बोलेंगे? अच्छी से और अच्छी चीज बनाना। हाँ, मतलब खराब जो चीज़ है, वेस्ट मतलब हो गया खराब चीज़। जैसे आपके घर के फालतू चीज़ें पड़ी हैं, शादी का कार्ड पड़ा है, कुछ पड़ा है, इधर उधर पड़ा है, उनसे आप कुछ क्रिएटिव काम कर देते हैं, कोई अच्छी चीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या बोलते हैं? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या बोलते हैं? जी हाँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो बोलिए आई कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है। आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। या किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सी इज ए वेरी क्रिएटिव गाय, बोलो सी ऑलवेज डज समथिंग गुड, समथिंग न्यू, ठीक है। अगर कोई चीज़ अच्छा कोई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्रिएटिव आदमी है। नाउ डी फॉर determined. Determined means whatever you think you do it. जो भी आप सोचते हो आप उसको करते हो, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना होगा एक डायलॉग जो है सलमान खान का, कि मैं अगर कमिटमेंट कर लेता हूँ तो खुद की भी, ठीक है, खुद की भी नहीं सुनता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिटरमाइंड हुआ, ठीक है। आई एम अ डिटरमाइंड पर्सन, बोलिए आई एम वेरी डिटरमाइंड टू माई वर्क, मतलब कार के प्रति आप डिटरमाइंड हैं। आई एम वेरी डिटरमाइंड टू माई ड्यूटी, ठीक है, मतलब यू ऑलवेज परफॉर्म योर ड्यूटीज प्रॉपरली, ठीक है। इसका मतलब जो है आप डिटरमाइंड पर्सन है, ठीक है। वैसे डी फॉर और भी चीज़ें होती हैं, बट दिस टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू ओनली वन। डी फॉर डायनेमिक भी होता है। क्या होता है? डायनेमिक पर्सनैलिटी कौन होता है? जो कि लंबा चौड़ा सुंदर होगा, उसको डायनेमिक पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि वह एक डायनामिक पर्सनैलिटी वाला आदमी है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? ही इज़ हैविंग, बोलिए ही इज़ हैविंग अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। चलिए एक बार आप लोग हमारे साथ रिपीट करेंगे, आई एम हैविंग अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, मतलब मैं एक डायनेमिक पर्सनैलिटी वाला आदमी हूँ। यू आर हैविंग अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, वी आर हैविंग, प्लीज फॉलो मी वट एवर आई एम डूइंग, यू हैव टू डू द सेम। आप लोग भी ऐसे करिए, वी आर हैविंग अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, दे आर हैविंग, दे मतलब दे आर सम पीपल, थोड़ा दूर पे, दे आर फार फ्रॉम अस, ठीक है, तो उनको बोलेंगे दे, वह लोग हैं, ठीक है। दे आर हैविंग डायनेमिक पर्सनैलिटी, ही इज हैविंग, आप किसी लड़के को दिखाइए आप लोग, ठीक है, आप भी, ठीक है, उधर लड़के को दिखा दीजिए, ही इज हैविंग अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, ठीक है। आप किसी लड़की को दिखाएंगे, सी इज हैविंग अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। समझ में आ गया? इसका मतलब वह डायनामिक पर्सनैलिटी वाली लड़की है या आदमी है, व्यक्ति है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ई फॉर एनर्जेटिक। आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ, ठीक है। आप हॉर्लिक पीते हैं, प्रचार नहीं कर रहा हूँ हॉर्लिक्स का, फिलहाल आपके अंदर एनर्जी है, मतलब यू डोंट गेट टायर्ड, ठीक है। बोलिए आई डोंट गेट टायर्ड, ठीक है। आई कीप डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करता रहता हूँ, ठीक है। आई कीप वर्किंग, मैं काम करता रहता हूँ, ठीक है। आई डोंट गेट टायर्ड, मैं नहीं थकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन। क्या बोलेंगे? आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन। एंड डियर ऑडियंस, प्लीज़ आप लोग भी दोहराइए, ठीक है। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सबको जो है दोहराना होगा। मोस्टली वाट एवर यू जस्ट वॉच इन योर मोबाइल और यू जस्ट वॉच द टीवी, आप लोग यू कीप व्यूइंग, आप देखते रहते हैं और इससे कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? बोलना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू स्पीक, ठीक है। तो आप सभी लोग दोहराइए। नाउ ई फॉर एनर्जेटिक हो गया, एफ फॉर फ्रेंडली। ढेर सारी चीज़ें होती हैं एफ से, ठीक है। एफ फॉर फ्रेंडली, एफ फॉर फेबुलस, एफ फॉर फैंटाबुलस, ठीक है, एफ फॉर फैंटास्टिक, ठीक है। बट अभी आपको एक याद करना, एफ फॉर फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब आई कैन मेक या आई मेक फ्रेंड्स ईजली, आई ईजली गेट कोजी टू अदर्स,
गेट कोजी टू अदर्स मतलब उनके नज़दीक आ जाते हैं, एंड ठीक है मेक द फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो इसका मतलब आप क्या हैं, फ्रेंडली हैं, ठीक है। आई एम वेरी फ्रेंडली। नेक्स्ट वन, जी फॉर जनरस G for generous. मीन्स यू हैव हेल्पिंग नेचर, आप जनरस। आई एम अ जनरस पर्सन, आई एम अ जनरस पर्सन। आई हेल्प द पीपल, आई हेल्प द नीडीज, आई हेल्प द नीडी पीपल। मतलब नीडीज मतलब हो गया ज़रूरतमंद, ठीक है, किसकी हेल्प करेंगे, जो ज़रूरतमंद होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरस आदमी हैं, ठीक है। आप हेल्पफुल हैं, आप इस भी बोल सकते हैं आई एम वेरी हेल्पफुल, ठीक है। क्या बोलेंगे, आई एम वेरी हेल्पफुल, क्या बोलेंगे, कोई आपका हेल्प किया है, ठीक है, तो बोल सकते हैं यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, क्या बोलेंगे, यू हैव बीन, आप मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एस फॉर, सॉरी हेल्पफुल नहीं था, हाँ जी फॉर जनरस हो गया, एस फॉर हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग मतलब क्या हो गया, मेहनती हैं आप, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक, बोलिए आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई वर्क हार्ड, ठीक है, तो आप मेहनत करते हैं, ठीक है, इसका मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन हो गए। नेक्स्ट वन इज जे फॉर, सॉरी आई फॉर इनोवेटिव। Innovative means if you have some new ideas and you implement them. So बोलो, आप लोग बोलो, I have always new ideas. मतलब मेरे पास हमेशा न्यू आइडिया होती है, एंड आल्सो आई इम्प्लीमेंट देम, ठीक है, या आई आल्सो इम्प्लीमेंट देम, ठीक है, मैं उन्हें इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। इम्प्लीमेंट मतलब होता है क्रियान्वित करना, यानी आप उसको, ठीक है, सोचते ही नहीं हैं बट आप उसको कर भी देते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप इनोवेटिव पर्सन हैं, ठीक है। तो बोलो आई एम एन इनोवेटिव पर्सन, ठीक है। यू आर एन इनोवेटिव पर्सन, वी आर इनोवेटिव पर्सन, दे आर इनोवेटिव पर्सन, ही इज इनोवेटिव पर्सन, सी इज इनोवेटिव पर्सन। जे फॉर जुबिलियंट, जे फॉर जुबिलियंट, ठीक है, मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, यानी आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, ठीक है, मतलब आप बहुत हैप्पी रहते हैं, तो आप जुबिलियंट आदमी हैं, ठीक है। कोई लड़का जुबिलियंट है, क्या बोलेंगे, हाँ, ही इज वेरी जुबिलियंट पर्सन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज के फॉर काइंड हार्टेड, स्टिल द सेम वर्ड, ठीक है। इफ यू आर हेल्पिंग, इफ यू हैव हेल्पिंग नेचर, ठीक है, यू आर ऑलवेज हेल्पफुल टू अदर्स, इट मीन्स आप जो है क्या हैं, काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। आई ऑलवेज हेल्प द पीपल, ठीक है, आई एम काइंड हार्टेड। एल फॉर लॉयल, लॉयल मीन्स होता है कि जस्ट लाइक फेथफुल, ठीक है। लॉयल मतलब होता है किसी से दगाबाजी न करना, जहाँ पर आप काम करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उनको आप, ठीक है, उनके साथ दगाबाजी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप फेथफुल हैं या लॉयल हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है आई एम वेरी लॉयल टू माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ही लॉयल हूँ, या आप बोल सकते हैं आई एम वेरी फेथफुल टू माई ड्यूटी, इसका मतलब आप अपने कार्य के प्रति बहुत ही लॉयल हैं। यहाँ पर आपको मैं देखिए तो बार बार मैं भी जानता हूँ कि लॉयल की हिंदी वफादार होती है, बट आप खुद भी या कोई भी, अगर आप बार बार दिमाग में आपके हिंदी ही बैठ रही है तो आप इंग्लिश का वर्ड भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए आप सभी लोग कि जो वर्ड पढ़ाया जा रहा है उसको अल्फा लॉयल ही याद करें, पहले मीनिंग ना आपको दिमाग में बैठे, ठीक है। इसीलिए मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ पर्टिकुलर उस चीज़ की, आप अन्य तरीके से समझ लें, बट आप अल्फा लॉयल ही अभी याद करें, ठीक है। एम फॉर मेरिटोरियस, आई एम वेरी मेरिटोरियस पर्सन, यहाँ पर्सन बोलने की जरूरत नहीं, आई एम वेरी मेरिटोरियस, क्या बोलेंगे, ठीक है। आई ऑलवेज स्कोर गुड मार्क्स इन माई एग्जाम, इफ यू आर स्टूडेंट, अच्छी बात है, नहीं तो आई एम वेरी माइंडेड, मैं बुद्धिमान हूँ। आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्या बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज एन फॉर नाइस, एन फॉर नाइस, ठीक है। आई एम सो नाइस, किसी दूसरे का ना, यू आर सो नाइस, अगर ये बोलना है मेरे प्रति आप बहुत नाइस हैं, तो यू आर सो नाइस टू मी, ठीक है। वी आर नाइस, दे आर नाइस, ही इज नाइस पर्सन, या ऐसे बोल देते हैं ही इज अ नाइस फेलो, बोलिए ही इज अ नाइस फेलो, शी इज अ नाइस फेलो,
ठीक है। तो एक अच्छा मतलब जनरल वे में जब हम लोग कहते हैं अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, तो ऐसे नाइस बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जोर नहीं देते हैं। नाइस मतलब एक काम चलाओ, ठीक ठाक हैं, बढ़िया अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं कहते हैं। नहीं तो सो कहेंगे, क्या कहेंगे? सो नाइस। ठीक है, बात समझ में आ गया? नाइस भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज है आपका ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। बोलिए ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। मीन्स यू आर ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। आई ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अच्छे के लिए आप होप करते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। ठीक है, मीन्स यू ऑलवेज जस्ट ट्राई टू गेट समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, इन एवरीथिंग आप हमेशा क्या करते हैं? हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं, क्या हो सकता है इसमें, अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, वी ऑल हैव द प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में हमेशा समस्याएं होती हैं, बट वी मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए और ऑलवेज थिंक दैट आई कैन डू। ठीक है, मैं इसे कर सकता हूँ। इन माई फर्स्ट वीडियो आई जस्ट टोल्ड यू 5 पंचिंग सेंटेंसेज। ठीक है, 5 सेंटेंसेज। ठीक है, मैंने बोले थे, क्या था? आई कैन डू, आई विल डू, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, गॉड इज ऑलवेज विद मी। देखिए ये 5 सेंटेंसेज यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, एंड यू हैव टू रिपीट इट व्हेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप कभी कोई समस्या में फंसते हैं और यू आर इन कन्फ्यूजन व्हाट टू डू और नॉट टू डू, यू हैव अ लॉट ऑफ टेंशन इन योर लाइफ दैट टाइम। ठीक है, अगर आप इस लाइन को दोहराते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस काम को कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 लाइन जो है आपको हमेशा दिमाग में रखना है। क्या है वो लाइन? आई कैन डू, आई विल डू, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स और गॉड इज ऑलवेज विद मी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, पी फॉर पोलाइट। आई एम वेरी पोलाइट पर्सन। ठीक है, पोलाइट है इसका मतलब आप बहुत ही डिसेंट आदमी हैं, सभ्य आदमी हैं। ठीक है, सबके प्रति बहुत ही सम्मान करते हैं। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई टीचर्स। मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, माई एल्डर्स। एल्डर्स मतलब आपसे जो बड़े लोग होते हैं उनकी आप जो है, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या हैं? पोलाइट हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्यू फॉर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स, ठीक है, यू हैव नॉलेज। ठीक है, मे बी यू हैव एकेडमिक डिग्रीज। आपके पास एकेडमिक डिग्री भी हो सकती है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड आदमी हैं आप। ठीक है, तो अगर किसी आदमी के बारे में बताना है तो क्या बोलेंगे? ही इज़ वेरी क्वालिफाइड पर्सन। क्या बोलेंगे? मीन्स ही इज़ वेरी एजुकेटेड। क्या हुआ? ठीक है, एजुकेटेड पर्सन है वो। नाउ आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मीन्स आई ऑलवेज टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई वर्क। मीन्स आप उसकी जिम्मेदारी को लेते हैं। ठीक है, देखिए आई लेट मी टेल यू देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एक होता है लीडरशिप, जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं लीडर। क्या बोलते हैं? दूसरे होते हैं फॉलोअर। क्या होते हैं? लीडर कौन होता है? वन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर ही डज। वह जो अपनी जिम्मेदारी लेता है, जो भी काम उसको दिया जाता है तो क्या करता है? अपनी जिम्मेदारी को लेता है। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं, दूसरे का वो क्या होता है? दे ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। क्या करते हैं? वो फेल्योर होते हैं, असफल लोग होते हैं, और वो ऑलवेज दे कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज। वो बहाना मारते रहते हैं। मेक एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? बहाना मारना। ठीक है, किसी से कहना हो अगर आपको कि बहाने मत मारिए तो क्या बोलेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेज। क्या बोलेंगे? और एकदम से सड़े बहाने मत मारो तो क्या बोलेंगे? डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। क्या बोलेंगे? डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। मतलब एकदम जस्ट लाइक कि आप स्कूल में टीचर हैं और आपके यहाँ बच्चे हैं तो एकदम सड़ा बहाना मार रहे हैं, कोई पेट दर्द कर रहा था हैं, तो वही बहाना जो घिसा पिटा है, तो लेम एक्सक्यूजेज है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज एस फॉर सिंसियर। ठीक है, आई एम वेरी सिंसियर पर्सन। सिंसियर मीन्स, ठीक है, यू हैव कॉमन सेंस। ठीक है, यू हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ठीक है, तो आई एम डिसीजन मेकर, आई एम वेरी सिंसियर, आई एम वेरी सीरियस टू माई वर्क। अपने कार्य के प्रति आप गंभीर हैं, सिंसियर हैं। ठीक है, केयरफुल हैं आप, आई एम वेरी केयरफुल। क्या बोलेंगे?
ठीक है, केयरफुल टू माई वर्क, ठीक है, आप लापरवाही नहीं करते हैं। केयरलेस होता है, लापरवाह कौन होता है? केयरलेस होता है। आप क्या हैं? केयरफुल हैं, सिंसियर हैं, ठीक है, तो आई एम वेरी सिंसियर। टी फॉर ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें, ठीक है, हैं, तो आई एम वेरी ट्रस्टवर्दी, ठीक है। एनीबडी कैन ट्रस्ट ऑन मी, बोले एनीबडी कैन ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, इसका मतलब आई एम वेरी क्रेडिबल पर्सन, बोलिए आई एम वेरी क्रेडिबल पर्सन, आई एम वेरी रिलायबल पर्सन, आप विश्वसनीय आदमी हैं, ठीक है, आपकी मार्केट खराब नहीं है, आपके लोग विश्वास कर लेते हैं आसानी से, ठीक है, इसका मतलब आप क्या हैं? ट्रस्टवर्दी हैं। क्या हैं? तो समझ गए ट्रस्टवर्दी ना सब लोग? तो बोलिए आई एम वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। नेक्स्ट, यू फॉर यूनिक, यूनिक, व्हाट इज यूनिक? नोबडी इज लाइक यू इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखिए यूनिक मतलब होता है जिसके तरह कोई और ना हो, ठीक है। कैन यू गेट ए पर्सन लाइक यू? क्या आप अपनी तरह का कोई आदमी ला सकते हैं? नो, ठीक है। गॉड हैज मेड यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, योर आईज, योर नोज, योर ईयर, एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, हर चीज़ डिफरेंट है। इसका मतलब आपके अंदर भगवान ने कुछ अच्छे गुण भी दिए होंगे डेफिनेटली, ठीक है, हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उन अच्छे गुणों को अपने अंदर से, ठीक है, बाहर निकालना है आपको। बाहर निकालना मतलब ये नहीं उसको रोक खत्म कर देना, उसको आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या हैं? यूनिक पर्सन है। बोलिए आई एम यूनिक पर्सन, आई एम वेरी यूनिक पर्सन, ठीक है। वी फॉर विवेशस, वी फॉर विवेशस, विवेशस मतलब क्या होता है? यू आर हैविंग एनर्जी, ठीक है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? ठीक है, विवेशस, तो आई एम वेरी विवेशस पर्सन, ठीक है। हमको कहेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग? यू आर वेरी विवेशस पर्सन। इनको कहेंगे तो क्या बोलेंगे? इनको कहेंगे तो क्या कहेंगे? और सब लोग अपने आप को कह दीजिए तो, और वो दोनों लोग जो बैठे हैं उधर दूर पे, दे आर वेरी विवेशियस पर्सन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू 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 डॉट, ठीक है, ठीक है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू फॉर वाइज, ठीक है, वाइज, इंटेलिजेंट, ठीक है, आप पहले से जानते हैं आई एम वेरी वाइज, हैं। डब्ल्यू फॉर एक और वर्ड है आजकल, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है, वंडरफुल। क्या चीज? वंडरफुल, इसको बोलिए वंडरफुल। अगर किसी से कहना बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, तो ही इज अ वंडरफुल गाय। क्या बोलेंगे? ही इज अ वंडरफुल गाय, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, ठीक है। क्या बोलेंगे? शी इज अ वंडरफुल गर्ल, ठीक है। इसका मतलब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्स फॉर जीनियल, एक्स फॉर स्टिल, इट इज फ्रेंडली, ठीक है। एफ फॉर फ्रेंडली आपने सीखा था, इट मीन्स आई एम वेरी फ्रेंडली। क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हॉस्पिटेबल, ठीक है, इसका मतलब आई एम जीनियल। नेक्स्ट वन वाई फॉर एंग, वाई फॉर यूथफुल, आई एम यंग, आई एम यूथफुल। जेड फॉर, या जिसको हम जी भी बोल देते हैं, ब्रिटिश में मैंने बोला जी बोलेंगे, ठीक है, अमेरिकन में जेड बोलते हैं पूरा, ठीक है। जी फॉर जेस्टफुल, मीन्स आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन। क्या बोलेंगे? आई एम जेस्टफुल, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है? नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 26 और 28 वर्ड्स व्हाट एवर आई जस्ट टोल्ड यू, आपको इनको यूज करके लोगों के बारे में डिस्क्राइब करना सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अभी तो मैंने पॉजिटिव बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं निगेटिव बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको बार बार आपको क्या करना है? रिपीट करना है, ठीक है, रोज रोज रिपीट करना है, ठीक है। तो बिफोर आई कंक्लूड, ठीक है, लेट्स रिवाइज द सेम वंस अगेन, ठीक है।
A for ambitious. A for ambitious. B for brave. B for brave. C for creative. C for creative. D for determined. E for determined. E for energetic. E for energetic. F for friendly. F for friendly. G for generous. G for generous. Vaisali, what are you doing? Look at me. G for generous. G for generous. S for hardworking. H for hardworking. I for innovative. I for innovative. J for jubilant. J for jubilant. K for kind-hearted. K for kind-hearted. L for loyal. L for loyal. M for meritorious. M for meritorious. N for nice. N for nice. O for optimistic. O for optimistic. P for polite. P for polite. Q for qualified. Q for qualified. R for responsible. R for responsible. S for sincere. S for sincere. T for trustworthy. T for trustworthy. U for unique. U for unique. V for vivacious. V for vivacious. W for wise. W for wise. W for wonderful. W for wonderful. X for genial. X for genial. Y for young. Y for young. Y for youthful. Y for youthful. Z for zestful. J for zestful. ओके, लर्न हो गया सबको? पक्का? अच्छा, अभी बताओ इसको हम क्या बोले थे? Wonderful. वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम बी फॉर ब्यूटीफुल लिखे होते तो क्या पढ़ते? Beautiful. क्या पढ़ते? हाँ, ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? Beautiful. जैसे पेन है, इसकी बखान करना है मुझे, वाओ। क्या बोलेंगे? Wow. इट्स ब्यूटीफुल। Is beautiful. ठीक है, क्या बोलेंगे? वाओ, Wow. इट्स ब्यूटीफुल। Is beautiful. Okay, that's all for today. If you like this video, please do subscribe and like it and share to others. Okay, thank you.